Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's we are going to discuss the topic human environment, settlement, transport and communication. Settlement we discussed in the previous part of this chapter. In this chapter we are going to discuss transport. So what is transport? Transport means the various means by which the people and goods can be moved from one place to another. मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जिस मोड से सामान और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट. अर्लियर द मैन ट्रेवल्ड ऑन फुट, but after some time some animals were used to carry the people and goods from one place to another place. Even today also in some parts these animals are used. For example, camel, ox, donkey, mule, yaks and llamas. They are used presently in some certain parts of the world. But after the discovery of wheel, a revolution came in the means of transport. And with the development of science and technology, now we have high-speed trains and aeroplanes. And if we are going to categorize or group or divide these means of transport, we can easily divide this transport in four categories: roadways, railways, waterways and airways. Now first we'll take the roadways. Roads are the important and common means of transport for short distances. What does it mean? If we want to go from one part to another part in same city, then road is the common means of transport, because इस छोटे से distance के लिए we can use only the road transport. That's why roads are very important to connect the small distances and to connect the rural and urban cities. उन सबको हम road से connect कर सकते हैं. Road connects the rural areas to big cities, and there are two types of road. Everybody knows metalled road and unmetalled road. Metalled road means पक्की रोड जिसको कहते हैं कोल तार से बनी हुई, एंड अनमेटल्ड रोड आजकल देखने को नहीं मिलती है, उसको कच्चा रोड बोलते हैं. ठीक है, तो रोड्स आर डिवाइडेड इनटू टू, मेटल रोड एंड अनमेटल्ड रोड. एंड मेटल रोड अगेन वी कैन डिवाइडेड इनटू नेशनल हाईवे, state highway and district highway. So what are national highways? National highways connect all important cities across the country. मीन्स पूरी कंट्री में जो एक important cities को connect करते हैं उन roadways को हम कहते हैं national highways. And state highways as well as district roads connects all important towns and cities. मीन्स जो स्टेट के इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं, दैट रोडवेज इज़ नोन एज स्टेट हाईवेज. एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर नोन विच कनेक्ट्स द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट. सो दीज आर द डिवीज़न ऑफ मेटल रोड, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट हाईवेज. Even in rural areas, network of roads is being extended. आजकल गांव में भी रोड का नेटवर्क बहुत अच्छा देखने को मिलेगा. कच्चा रोड तो बहुत कम देखने को मिलता है, पक्का मेटल रोड ही आजकल एग्जिस्टेंस में है. एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट इज एक्सप्रेस वे. एक्सप्रेस वे जो है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट है. एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिस इज द एक्सप्रेस वे. इट कनेक्ट द दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. ये इन चारों बिग सिटीज़ को कनेक्ट करता है. इट मीन्स कनेक्ट्स द एंटायर इंडिया. ऊपर जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, बाकी पूरे इंडिया को कनेक्ट करता है. एंड मनाली ले हाईवे, वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड. Either the construction of road is quite difficult in the mountainous region. प्लेन रीजन पे तो बहुत easily कंस्ट्रक्ट हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद ही मनाली ले हाईवे वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड. एंड सबवे एंड फ्लाईओवर्स जो अभी
अभी तो नहीं, काफ़ी साल हो गए हैं. व्हाट आर दीज सबवेज एंड फ्लाईओवर्स? सबवेज रोड बिल्ड अंडरग्राउंड. जो रोड के अंडरग्राउंड जो रोड बनाई जाती है, दैट रोड इज नोन एज सबवेज. एंड फ्लाईओवर्स बिल्ट ओवर रेस्ड स्ट्रक्चर. और ये फ्लाईओवर्स और सबवे किस लिए बनाए जाते हैं? टू प्रोवाइड अस कंफर्टेबल एंड जैसे काम जर्नी, कंफर्टेबल जर्नी एंड फास्ट जर्नी. क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, ट्रैफिक अवॉइड करने की वजह से ये सबवेज एंड फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं ताकि हमारी जर्नी फास्ट हो जाए और कंफर्टेबल हो जाए. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द रोडवेज. नाउ द रेलवेज. Railways, everybody is aware of railways. Railways carry heavy goods and people. Means railways is used for carry the heavy goods. जो बहुत बल्कि आइटम्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और to carry the people from one place to another place for long distances. Long distances के लिए this railways is the best, and this is the क्विकली एंड चीपली ट्रांसपोर्ट. ये क्विकली मीन्स बहुत तेज़ी से चलने वाली है और चीप है, सस्ती भी है. समझ में आया? तो रेलवे जो है हैवी गुड्स के लिए, ये जो है शॉर्ट डिस्टेंसेस, रोडवेज इज़ फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड रेलवे इज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड टू कैरी द हैवी लोड्स. इनिशियली द स्टीम इंजन्स वर इंट्रोड्यूस. लेकिन स्टीम इंजन की वजह से पोल्यूशन बहुत होता था एंड इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन्स. उसकी जगह इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गई, इलेक्ट्रिक इंजन्स आ गई, एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स वो इको फ्रेंडली, जो पोल्यूशन नहीं किया करते थे. एंड द नेटवर्क ऑफ रेलवे सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड इन आवर कंट्री. इंडिया में बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है. And even in mountainous region also the railway system is well developed. बहुत मुश्किल है वहाँ पे रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट करना, लेकिन उसके बावजूद भी ये नेटवर्क सिस्टम माउंटेनियस रीजन में भी हमारे यहाँ वेल डेवलप्ड है. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस रेलवेज मुंबई शटल, जिसको कहते हैं वहाँ की लोकल ट्रेन, एंड दिस इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मुंबई, जो हज़ारों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लाइफ लाइन है. क्लियर? एंड द दिल्ली मेट्रो. दिल्ली मेट्रो हैज़ बीन डेवलप्ड टू फैसिलिटेट द मास मूवमेंट. लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं. दैट्स वाई दिस रेलवेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी लैंड पे चलने वाले सब फास्टेस्ट कह सकते हैं इसको, रोडवेज के कंपैरिजन में फास्टेस्ट एंड चीप means of transport. The Trans-Siberian Railway System is the longest railway system in the world. ये रशिया में है and this connects the Moscow to Vladivostok. ये दो cities को connect करती है, ठीक है. and this is the longest railway system जो रशिया में है. and Indian railway network, जैसे मैंने आपको well developed है, इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया. इंडिया का जो नेटवर्क सिस्टम है रेलवेज का, लार्जेस्ट इन एशिया एंड फोर्थ इन द वर्ल्ड. बहुत प्राइड की बात है, प्राउड की, कि हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है रेलवेज का पूरे वर्ल्ड में फोर्थ है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेलवेज. नाउ कम टू द थर्ड, वाटरवेज. वाटरवेज इज द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट. ओल्डेस्ट में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हमने पढ़ा था वास्को द गामा इंडिया में आया था, कालीकट पे का उसने लैंड किया था. तो कैसे आया था? थ्रू वाटरवेज. ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया थ्रू वाटरवेज. तो मतलब दिस इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड चीपेस्ट. चीपेस्ट क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेल ट्रैक्स. क्योंकि कोई रोड कंस्ट्रक्ट नहीं करनी है, कोई रेलवे ट्रैक ले डाउन नहीं करना है, इसलिए ये चीपेस्ट है. सस्ता भी है और बल्कि आइटम्स इसमें एक जगह से दूसरी जगह कैरी किए जाते हैं और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है. एंड वाटरवेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स. Inland waterways is for means inside the country, means एक country के अंदर
जो भी है उसको इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। एंड सी रूट्स, दिस इज़ फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड्स नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स। जो हमारी कंट्री के अंदर नेविगेबल लेक्स और रिवर्स हैं वो इसमें आती हैं इनलैंड वाटरवेज। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन, लेकिन इसके लिए भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मानने चाहिए, जो इसके लिए हैं डेप्थ एंड विड्थ, कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। अगर लंबाई चौड़ाई ज़्यादा नहीं है तो इट इज़ नॉट फिट फॉर इनलैंड वाटरवेज। एंड कंटिन्यूटी ऑफ वाटर, कंटिन्यूटी ऑफ वाटर मीन्स इट शुड बी अ पेरिनियल रिवर, हमेशा जो 12 महीने बहती है। सीजनल नहीं होनी चाहिए कि रेनी सीजन में तो बरसात का पानी आ गया और बाकी समय सूखी पड़ी रहती है। तो कंटिन्यूटी ऑफ वाटर इज़ मैंडेटरी, तभी वो इनलैंड वाटरवेज की तरह यूज़ हो सकती है। एंड सम इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर गंगा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम है। द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की आपकी ग्रेट लेक्स, रिवर नाइल इन अफ्रीका, अमेजॉन इन साउथ अमेरिका, मिसिसिपी रिवर इन नॉर्थ अमेरिका, ये इनलैंड वाटरवेज के एग्जाम्पल्स हैं। एंड स्टीमर्स एंड मैकेनाइज्ड बोट्स आर यूज फॉर इनलैंड वाटरवेज। इनके लिए स्टीमर्स और आपकी मैकेनाइज्ड मोटर बोट जो होती है वो यूज़ होती हैं। एंड सी रूट्स, सी रूट्स में से इसको ओशनिक रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड दीज सी रूट्स आर मेनली यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स एंड दीज आर कनेक्टेड थ्रू पोर्ट्स, जो पोर्ट्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आर सिंगापुर एंड मुंबई पोर्ट इन एशिया। एशिया में दो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, सिंगापुर एंड मुंबई पोर्ट्स। न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की ये दो पोर्ट हैं। एंड रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी पोर्ट, एंड लंदन एंड रॉटरडम इन यूरोप। These ports are important which are connected to each other with sea routes for international trade and commerce. तो बेटा ये आपको समझ में आया। What are transport? Transport includes the various means by which people and goods can be moved from one place to another place. And types of transport, there are 4 types of transport: roadways, railways, waterways and airways. एयरवेज है, हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड इसमें हमने जो डिस्कस किया है रेलवेज, रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज। रेलवेज इज द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड इसकी जो बेस्ट पॉइंट है वो इट प्रोवाइड द डोर टू डोर सर्विस, हमको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है इफ़ वी आर यूजिंग आवर ओन व्हीकल। अपने घर के दरवाजे से बैठो और डेस्टिनेशन पे उतरो, ये सिर्फ रोडवेज ही प्रोवाइड कर सकता है डोर टू डोर सर्विस। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए भी, रूरल एरियाज़ के लिए भी दैट रोडवेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रेलवेज इज़ गुड फॉर कैरी द बल्की गुड्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस और चीप भी है, ठीक है। एंड वाटरवेज इज द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट, और चीपेस्ट क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड रेल ट्रैक्स एंड इट डिवाइडेड इनटू 2, inland waterways and sea routes. Inland waterways include navigable rivers and lakes जो हमारी अपनी कंट्री में, these are the examples. And sea routes means they are mainly used for international trade and commerce and connected with ports, जो पोर्ट से एक दूसरे से लिंक रहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है then like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.